Hello, this is Dr. Anish Desai. I'm the medical lead for UNS. I'm also a clinical pharmacologist and a nutraceutical physician. 25th July is celebrated as the World IVF Day. In fact, in 1978, the first test tube baby was born. And since then, this whole IVF field has undergone a huge change. There are several infertile couples who are seeking help. And today, with technology, diagnosis and treatment has become possible. This has led to several couples getting the ray of hope whereby they can have their children. And this is where I think the couples need to take expert opinion and expert help from the infertility specialists that are there in this country. The infertility space has undergone a huge sea of change, and that's where these infertility specialists and the IVF specialists are working together to support these couples with the modern technology and the modern diagnostic methodologies and the modern treatments to fulfill the aspirations of all the couples. So UNS has taken this special initiative to celebrate the World IVF Day. And this entire week, beginning from 25th of July, we would be celebrating this. And every day you would be hearing from our experts who have been working tirelessly to make this whole journey of parenthood possible for the couples. And they would be expressing their views and sharing their experiences and the latest technologies with you. Thank you. Hello, I bring greetings from Jindal IVF Chandigarh. I am Dr. Umesh Jindal, and I will talk about few common questions related to IVF. IVF is a very successful technique at all ages, but the capacity to have good embryos decrease with age. So the success is very much related to the age of the female partner, and we recommend a timely IVF to get good results. If any patient is not able to conceive after 1 year, she can go for infertility workup and can try simple treatments like IUI or medicines for conceiving. And if that does not work, then patient can go for IVF. Usually we recommend that any patient should not delay IVF if she has not been able to conceive for more than 3 years. And in older women, we may take a decision for IVF even earlier. Once patient's counseling is done for IVF, a set of investigations is advised, which is required before we go for IVF to ensure that we can get an adequate number of eggs, sperm, and then fertilization. There are good chances, and the uterus is normal to take back the embryo. So once we are satisfied with all the tests, then the patient can start the procedure of IVF and undergo the IVF technique. Best results are in the younger age group. Older women, ovaries get weak and the eggs are less in number, as well as they are weak and may not be able to give normal embryos. Although these embryos look normal, but they may not be normal and they may not be able to implant. The success rates do fall in older women, and many of these cases we may have to go for egg donation and IVF cycles, or pre-implantation genetic testing is the latest technique which may help to select normal embryos in these couples and may improve the pregnancy rates in these older women. नमस्कार, मैं डॉक्टर BD पारसेवार, स्त्री रोग व प्रसूति शास्त्र तज्ञ, ओम साई हॉस्पिटल वसई पूर्व और नालासोपारा पूर्व और जायगोट IVF सेंटर वसई पश्चिम। मैं आज आपको टेस्ट ट्यूब बेबी यानी IVF किसने कराना चाहिए, किसके लिए ज़रूरी है, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत से बार काफ़ी सारे कपल्स या दाम्पत्य हमारे पास आते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं डॉक्टर साहब हमको ट्राई नहीं करना, डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब बेबी करो। जस्ट कोई न्यूली मैरिड है, आजकल जो IT वाले कपल्स हैं उनके पास समय नहीं रहता, या मार्केटिंग वाले कपल्स हैं उनके पास समय नहीं रहता,
तो बहुत बार मैं देखता हूँ कि उनको घाई रहता है तो वो बोलते हैं कि डायरेक्ट आईवीएफ करो। उनका कोई जांच नहीं हुआ रहता है, कभी कभी बहुत से बार उनके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल भी रहते हैं, स्टिल वो बोलते हैं कि आईवीएफ करो। तो हमेशा हम यही बोलते हैं कि जो कपल 1 साल साथ में रह के प्रयास करके अगर बच्चा नहीं हो रहा है या संतान नहीं हो रहा है, उन लोगों ने ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। तो ट्रीटमेंट में बहुत से प्रकार है, डायरेक्ट आईवीएफ कराने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे 1 साल के बाद अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो चेकअप करना जरूरी है। जैसे स्त्री ने चेकअप करना जरूरी है, पुरुष ने चेकअप करना जरूरी है, और रिपोर्ट के अनुसार आपके गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे ज़्यादा अच्छी है। जैसे स्त्री में फैलोपियन ट्यूब या नलिका अगर ब्लॉक है, दोनों ट्यूब अगर आपके ब्लॉक है, लैप्रोस्कोपी करके भी अगर ट्यूब ओपन नहीं हो रहा है, आपका यूट्रस का कैविटी या बच्चादानी के अंदर जहाँ बच्चा पलने वाला वो जगह अगर सही है, तो ये इंडिकेशन है टेस्ट बेबी करने का। क्योंकि अगर नली ब्लॉक है तो पुरुष के शुक्राणु और स्त्री बीज इनका मिक्सिंग मिलन नहीं हो सकता है, क्योंकि रास्ता मतलब नली है। तो ऐसे लोगों के लिए आईवीएफ ये बहुत उपयुक्त रहता है। तो बहुत से बार हम देखते हैं कि लेडीज़ की उम्र 25 साल है, 24 साल है, लेकिन उनका दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है। तो पेशेंट मुझे हमेशा पूछते कि डॉक्टर साहब मेरी तो इतनी उम्र कम है, तो मैंने आईवीएफ कराना ज़रूरी है क्या, और कोई रास्ता नहीं है क्या? अगर ट्यूब बंद है तो आईवीएफ ही एक जरिया है। अगर ट्यूब ओपन नहीं हो रहा है तो आईवीएफ ही एक जरिया है कि जिसमें आपको बच्चा हो सकता है। जैसे उम्र कम है, बाकी सब चीज़ें अच्छी है, सिर्फ ट्यूबल फैक्टर की वजह से अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, पुरुष के शुक्राणु अच्छे हैं, आपका यूट्रस अच्छा है, आपका एग का क्वालिटी अच्छा है, तो ऐसे पेशेंट में आईवीएफ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरी बात, मेल फैक्टर। मेल्स में जैसे हम लोग धातु का या सीमेन का जब जांच करते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि कभी कभी कोई पुरुष में शुक्राणु बहुत कमज़ोर रहते हैं, या कोई पुरुष में काउंट जो है, शुक्राणु का काउंट वो बहुत कम रहता है। कोई पुरुष में शुक्राणु काउंट अच्छा रहता है कि मोटिलिटी एकदम पुअर रहते हैं, और कोई पुरुष में मॉर्फोलॉजिकल नॉर्मल स्पर्म बहुत कम रहते हैं। तो ऐसे पुरुषों के लिए भी हम लोग आईवीएफ की सलाह देते हैं। इस ऐसे शुक्राणु का अगर प्रॉब्लम है तो आईवीएफ में इक्सी नाम का एक प्रकार है, उसके हम पेशेंट को सलाह देते हैं, जिसके द्वारा वो अपना प्रेगनेंसी तैयार कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर फीमेल्स या कपल का उम्र ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा होने की वजह से एमएच एकदम कम हो गया है, या कोई फीमेल अंडे अपना बीज बना नहीं पा रही है, तो ऐसे पेशेंट में भी हम लोग आईवीएफ की सलाह देते हैं। कभी कभी लो एमएच रहता है, फिर भी हम लोग जब ट्राई करते हैं, स्त्री अगर अच्छे से अंडा बना रही है तो इसमें हम लोग आईयूआई से ट्राई करते हैं। अगर लो एमएच है और बीज स्त्री बीज नहीं बन रहा है तो उसमें भी हम लोग टेस्ट बेबी की सलाह देते हैं। चौथी बात, एंडोमेट्रियोसिस। कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में एग्स नहीं बनते हैं, बहुत से बार ट्राई करके भी उनको प्रेगनेंसी नहीं रुकते, तो ऐसे पेशेंट में भी हम लोग आईवीएफ की सलाह देते हैं। और कोई पेशेंट बहुत ट्राई कर चुके हैं, अलग अलग पद्धति से उपचार कर चुके हैं, आईयूआई कर चुके हैं, अगर 6 बार से आईयूआई ज़्यादा किसी ने कराना नहीं चाहिए। अगर 6 आईयूआई करने के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उन लोगों ने भी आईवीएफ करना हम लोग रिकमेंड करते हैं। या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, सब अच्छा है, कोशिश कर रहे, प्रेगनेंसी नहीं हो रहे, तो ऐसे लोगों में भी हम लोग आईवीएफ द्वारा प्रेगनेंसी करने के लिए सलाह देते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर वंदना मिश्रा है। मैं सीड्स ऑफ इनोसेंस के पटना ब्रांच की सीनियर कंसल्टेंट एवं क्लिनिकल डायरेक्टर हूँ। 25 जुलाई को वर्ल्ड आईवीएफ डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पहले आईवीएफ बेबी का जन्म हुआ था, और आईवीएफ अब एक काफी ज्यादा प्रयोग में आने वाली पद्धति हो चुकी है। ये उन दंपतियों के लिए स्पेशली इफेक्टिव होती है जो 1 साल से ज्यादा समय से प्रयास कर रहे हैं पर उनको संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। आईवीएफ बहुत ही कारगर होता है वैसे दंपतियों के लिए अगर उनके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, या महिलाओं में कोई अंडाशय में या बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, या शुक्राणु पुरुष या उनके पार्टनर का शुक्राणु का निल है या खराब है शुक्राणु, तो आपको आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा अगर बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, गर्भपात हो रहा है, या परिवार में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए जेनेटिक स्क्रीनिंग अपने भ्रूण का करवा सकते हैं।
तो यदि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है किसी कारणवश तो आप आईवीएफ आपके लिए काफी इफेक्टिव। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव हूँ, जबलपुर फर्टिलिटी सेंटर की डायरेक्टर, आईवीएफ स्पेशलिस्ट। मैं सिंस 2008 से मैं आईवीएफ कर रही हूँ और मुझे बड़ी खुशी है इतने सालों में इतने सारे दंपतियों को जिनको स्वास्थ्य लाभ या संतान सुख मिला है, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि विज्ञान का ये सबसे अद्भुत चमत्कार है आईवीएफ। इस वर्ल्ड आईवीएफ डे 25 जुलाई के उपलक्ष्य में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आईवीएफ उन दंपतियों के लिए है जो बेसिकली हर कुदरती रूप से कुदरती ट्रीटमेंट से फेल हो चुके हैं या वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ये बेसिकली कठिन होते हैं और इन चैलेंजिंग सिचुएशंस होते हैं इनकी। एक पेशेंट मेरी ऐसी थी जिसका बच्चेदानी में एक बहुत बड़ा ट्यूमर था, एडिनोमायोमा बोलते हैं उसको, एडिनोमायोसिस। और एडिनोमायोसिस एक बहुत ही कठिन सिचुएशन होता है और आईवीएफ के सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चेदानी का सेहत। वो लड़की की उम्र भी 33-34 हो रही थी, तो अब उसका ऑपरेशन भी होना था। तो हम लोगों ने उसको सबसे पहले आईवीएफ द्वारा उसके एग्स निकाले, उसके एग पिकअप किया, उसके एम्ब्रियोज़ बनाए और उसके एम्ब्रियो को फ्रीज़ कर दिया। इसके बाद हमने उसको सर्जरी के लिए रखा। उसका जो कठिन ट्यूमर था एडिनोमायोसिस को ऑपरेट किया। इसके बाद उसकी बच्चेदानी इतनी फैली हुई थी, इतनी ख़राब थी कि उसको सिकोड़ने का कुछ ट्रीटमेंट हम लोगों ने चालू किया। 1 साल तक हमने उसके ट्रीटमेंट किया और उसकी बच्चेदानी को वापस नॉर्मल अच्छे फंक्शनल सिचुएशन पे लेकर आए। 1 साल बाद हमने उसके फ्रीज़ किए हुए एम्ब्रियोज़ को वापस बच्चेदानी के अंदर इम्प्लांट किया, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया और वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ उसका प्रेगनेंसी का सफ़र थोड़ा बहुत कठिन था बिकॉज उसकी बच्चेदानी थोड़ी सी नरम थी, लेकिन फिर भी हमने शी कुड डिलीवर अ हेल्दी बेबी। 9 महीने का एक बहुत अच्छा उसको बहुत ही सुंदर स्वस्थ बेटा पैदा हुआ। दिस वॉज सच अ चैलेंजिंग सिचुएशन और बड़ी खुशी हुई थी हमें उसको आईवीएफ बेबी देते हुए। तो हम ये एक्चुअली कुछ लोगों को ये लगता है कि बहुत सारे पेशेंट्स ये पूछते हैं आकर के कि मैडम आपके सेंटर में सक्सेस रेट कितना है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। सक्सेस रेट सेंटर टू सेंटर नहीं वेरी करता है। देखिए, एक आईवीएफ लैब का काम है आपके लिए एक अच्छा हेल्दी एम्ब्रियो बनाना। Hello, I'm Dr. Pooja Mehta. I'm a gynecologist and IVF specialist from Fortis Hospital, Mohali. Aaj I'm going to talk about when does patient not conceive. Suppose the patient is not conceiving after 1 year of marriage, or if the patient has abortion and still the patient doesn't conceive, then there are a few tests which husband and wife, both of them should do it. Husband should get his semen analysis done and wife should get her basic tests like thyroid, prolactin and anti-mullerian hormone and ultrasound tests done. Once these tests are done, supposedly the report comes normal, then accordingly we plan for normal simple treatment in the beginning. 90% of our patients will not require IVF. Only 10% will require IVF. 90% of the patients will conceive through normal natural treatments like medicines or intrauterine insemination or sometimes laparohysteroscopy. I think IVF is required only hardly for a very few percentage of patients with whom the tubes are blocked. Supposedly there is grade 3 or 4 endometriosis. Supposedly there is severe male factor, or if a patient is having premature ovarian insufficiency. Only those patients will require IVF. Thank you.